All right, so before starting, let me read this small topic called Raja Chalaiya Tax Reforms Committee, a very frequently asked topic. So, prior to the liberalization of economy, India's tax regime was marred with numerous problems in terms of direct taxes. There was a high degree of progressiveness in 1960s and 1970s that led to adverse effect on tax collection efficiency. Further, there were large number of exemptions eroded that already narrowed tax base in the country, that already narrowed the tax base in the country. Then the poor enforcement of direct taxes led to tax evasion at wake. In terms of corporate tax, there were numerous discriminations between different kinds of companies that discouraged the investments. Further, double taxation of dividends was also common in those days. In terms of indirect taxes, the high rates of customs and excise duties were prevalent. There was no VAT. There was no VAT. There was no service sector within the purview of tax. The efforts to reform India's tax system began in mid 1980s when the government announced a long-term fiscal policy 1985. This policy recognized that the fiscal position of the country is going downhill and there was a need to make changes in the taxation system. In that decade, a technical group to review and rationalize the central excise duties was established, and this led to the introduction of modified system of value added tax in 1986. So you can एक ये fact you can remember कि modified value added tax system started in 1986. However, it is now obsolete. And the other thing that you should remember from this paragraph is एक long term fiscal policy start हुई थी 1985 में. Who was the chairman of that long term fiscal policy, या फिर who actually made that? So I have written somewhere I read it here. long term fiscal policy कहीं तो पढ़ा था मैंने, तो एक सेकंड मिल जाए तो अच्छा है. long term fiscal policy, right, this long term fiscal policy was announced by VP Singh. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी के तहत इसी के बाद फिर हमारा जो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया. दैट वाज द आफ्टर मैथ ऑफ दिस लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी विच वाज अनाउंस्ड बाय वीपी सिंह. ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे वहाँ पे? चलैया कमेटी के रिकमेंडेशंस देख रहे थे. तो ऐड क्यों आ रहा है? ठीक है, सो राजा चलैया कमेटी, ये देख लीजिए, राजा चलैया कमेटी है. The government appointed tax reforms committee under the Professor Raja Chalaiya to lay out agenda for reforming India's tax system. The tax reforms committee came up with 3 reports in 1991, 1992 and 1993 with several measures. तो इनके 3 reports आई थी राजा चलैया कमेटी के, which can be summarized in these points. तो अब देखो, जो मेन है, मोटा मोटा कुछ तो जनरल बातें हैं कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना है भाई, ठीक है, रिडक्शन. फिर अपना इंपोर्ट कॉस्ट कम करना है, ठीक है, ये भी आम बात हो गई. और कस्टम्स ड्यूटी कम करनी है, ठीक है. और नंबर ऑफ़ कस्टम टैरिफ जो स्लैब्स होते हैं वो भी कम करना है और उसका रैशनलाइजेशन करना है. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सर्विसेज सेक्टर को टैक्स के अंदर ले आना था, अभी तक नहीं हुआ था ये. तो ब्रिंगिंग द सर्विस सेक्टर इन द टैक्स नेट विद इन अ वैट सिस्टम, तो उसी के तहत फिर ये स्टार्ट हुआ था सिस्टम. ये इस्टेब्लिश्ड एंड दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडिफाइड सिस्टम ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स. तो ये बेसिकली 1986 से मॉड वैट स्टार्ट हुआ. तो सर्विस सेक्टर को जो हम बात कह रहे थे कि वैट के एम्बिट में ले आना है, ठीक है, ब्रिंगिंग द सर्विसेज सेक्टर इन द टैक्स नेट विद इन द वैट सिस्टम and broadening of the tax base and building a tax information and computerization system and improving the quality of tax administration and simplifying the excise duties and its integration with the value added tax system. तो देखो, इन्होंने excise duties को भी एक तरीका खोजना था जिसके तहत excise duties को VAT system के अधीन ले आया जा सके. integration of excise duties within value added tax system and integration of service tax within value added tax system. तो ये कुछ basically recommendations दिए गए थे राजा चलैया कमेटी के द्वारा. नाउ अब हम अपने नोट्स पे वापस आते हैं. सो यहाँ से हम लोगों को करना था द टैक्सेस दैट कैन बी लिवाइड बाय ग्राम पंचायत्स. तो कोई फेयर हो रहा है या एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर लगने वाला टैक्स है तो वो ग्राम पंचायत को जाता है, और कोई मेला वगैरह अगर हो रहा है तो वो ग्राम पंचायत को जाता है.
और सर्विस टैक्स इन सेलेक्टेड एरियाज़, टोल टैक्स इन सेलेक्टेड एरियाज़ और पेनाल्टीज़, ठीक है। तो सर्विस टैक्स इन सेलेक्टेड एरियाज़ एंड टोल टैक्स इन सेलेक्टेड एरियाज़ ये भी ग्राम पंचायत को जाता है। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम फ्रॉम फॉर ग्राम पंचायत जैसे पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक अपने मतलब वॉलंटरली दे सकती है पब्लिक असिस्टेंस, फंड कंट्रीब्यूशन फंड के रूप में मिल सकता है, टैक्सेस एज स्टेटेड अबव, ग्रांट्स के रूप में बहुत पैसा मिलता है ग्राम पंचायत को, एंड बोरोइंग्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सेल्फ इनकम हो सकती है। जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर लैंड पे लगने वाला टैक्स ग्राम पंचायत को जाता है, कोई मेला वगैरह हो रहा है, फेयर, एंड सर्विस टैक्स इन सेलेक्टेड एरियाज़ एंड टोल टैक्स इन सेलेक्टेड एरियाज़, तो ये उनके कुछ खुद के इनकम्स होते हैं, राइट। देन 2001 में अर्थक्वेक आया था कुछ कच्छ गुजरात में, ठीक है, कच्छ गुजरात में, और इसके परिणाम स्वरूप 5 ईयर एक्साइज ड्यूटी हॉलीडे दी गई थी गुजरात में, स्टेट में सभी इंडस्ट्रीज़ को 5 ईयर एक्साइज ड्यूटी हॉलीडे दे दी गई थी कच्छ में, जो गुजरात में अर्थक्वेक आया था 2001 में, उसके बाद। नाउ एड्रेस इज़ नॉट मेंशन्ड इन द पैन कार्ड। तो पैन कार्ड में क्या क्या मेंशन होता है, आपका नाम होता है और फादर्स नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है और पैन नंबर होता है। तो पैन नंबर तो छोड़ो, वो तो लिखा ही होगा, डेट ऑफ बर्थ भी होता है और आपका नाम और फादर का नाम भी होता है। तो 4 चीज़ होती हैं पैन कार्ड में। देन पैन हैज़ 10 कैरेक्टर्स। अब जैसे 10 कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें कि पहले 5 इंग्लिश कैरेक्टर्स होते हैं एंड द नेक्स्ट 4 आर डिजिट्स। तो अगर अब तुमको अपना पैन याद होगा तो हाँ, तो उस हिसाब से आप अपना ये बता सकते हो। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 4th इंग्लिश लेटर होता है, जैसे मेरे केस में वी है, वी, अब वी यहाँ लिखा ही नहीं है, खैर। तो इसमें जैसे जो 4th कैरेक्टर होता है वो या तो कंपनी, सी अगर होगा तो कंपनी मीन करेगा, एच तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एफ होगा तो फर्म होगा, ए होगा तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होगा, टी होगा तो ट्रस्ट होगा, बी होगा तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होगा, एल होगा तो लोकल अथॉरिटी हो जाएगा, जे होगा तो आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्सन हो जाएगा, ठीक है, और जी होगा तो गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे बी से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया, ट्रस्ट हो गया, ए से एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो गया, देन एफ से फर्म हो जाएगा, और एच से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और सी से कंपनी हो जाएगा। तो ये 4th कैरेक्टर जो होता है हमारे पैन में वो ये डिनोट करता है। अब इसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दिस इज़ रेगुलेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अभी मैंने ऊपर 2 चीज़ें पढ़ी थी कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों ही हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से आता है, और अब हम देख रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी रेगुलेट कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। एंड फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशंस ऑफ केलकर कमिटी 2015 ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसमें इन्होंने बोला था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को अमेंड करो, एंड देयर इज़ अ नीड टू प्रोटेक्ट ब्यूरोक्रेट्स फॉर टेकिंग डिसीजंस विद बोनाफाइड इंटेंशंस। इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को अमेंड करने का रिकमेंडेशन दिया था। क्विक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उसके लिए एक क्विक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुड फोकस मोर ऑन सर्विस डिलीवरी रादर दैन फिजिकल सेविंग्स। तो फोकस मोर ऑन सर्विस डिलीवरी rather than fiscal savings, and government should give equal focus on both greenfield and brownfield public-private partnership projects. The need of a national policy for public-private partnership backed by the parliament. तो एक पॉलिसी बनाओ नेशनल लेवल पे फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अलॉन्ग विद कोई अगर कानून बना दो तो ज़्यादा अच्छा है। देन सेट अप 2 न्यू बॉडीज़, इसमें आईपैट और आईपीआरसी, ये 2 न्यू बॉडीज़ बनाने की मांग रखी गई थी। IPAT stands for Infra PPP Adjudicatory Tribunal and IPRC is Infra PPP Review Committee, ठीक है। तो IPAT stands for Infrastructure Public Private Partnership Adjudication Tribunal and IPRC stands for Infrastructure Public Private Partnership Review Committee। एंड इन्होंने बोला था GST लगाने को, तो मुझे नहीं पता कि बाकी का इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, बट ये लास्ट पॉइंट तो इम्प्लीमेंट हो गया था, केलकर कमेटी 2015 वाला। नाउ अब ये कुछ टाइप्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जैसे EPC है, दिस स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल। फिर उसी तरह से बॉट होता है, बिल्ड ऑन ट्रांसफ़र, और फिर हाइब्रिडी एन्युटी मॉडल होता है, सबसे ज़्यादा ये आजकल चल रहा है हाइब्रिडी एन्युटी मॉडल। फिर बिल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफ़र, ये भी एक होता है। तो ये अभी देखते हैं क्या है इसमें। अब ये इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल में प्राइवेट सेक्टर ऑफर्स ओनली इट्स इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़, ठीक है। तो इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर देता है,
जबकि गवर्नमेंट पेज फॉर द रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट वगैरह जो हो गया, और हाँ मतलब जो भी इंसिडेंटल मशीनरी वगैरह लगवानी है या लेबर एम्प्लॉय करना है या रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, तो वो उसका खर्चा गवर्नमेंट देगा और प्राइवेट संस्था सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ देगा। तो दैट इज़ इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल। एंड इसका एक डाउनसाइड है कि गवर्नमेंट अलोन हैज़ टू बेयर द वन साइडेड फाइनेंशियल बर्डन। ठीक है, तो ये हो गया ईपीसी मॉडल। उसके बाद बिल्ड ओन ट्रांसफ़र मॉडल होता है। हेयर प्राइवेट प्लेयर बिल्ड्स ऑपरेट्स and after earning certain amount of pre-decided revenue for the contracted period transfers the facility back to the government। अब जैसे NHAI प्रोजेक्ट्स हो गए इंडिया में, तो NHAI के जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं ये सारे आपके बिल्ड ऑन ट्रांसफ़र मॉडल पे चलते हैं। और इसमें डाउन साइड ये है कि द प्राइवेट प्लेयर्स डू नॉट गेट ह्यूज लोन्स ड्यू टू NPA प्रॉब्लम एंड एब्सेंस ऑफ सॉवरेन गारंटी। तो अब प्राइवेट प्लेयर बिल्ड्स एंड ऑपरेट्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जो भी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उससे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में रेवेन्यू अर्न करने का, और उसके बाद फिर फैसिलिटी वापस दे देगा। लेकिन अब ये बिल्ड करना है, जिम्मेदारी प्राइवेट प्लेयर की है, उसके लिए उनको एकाएक इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता है। ठीक है, ड्यू टू द ऑन गोइंग प्रॉब्लम ऑफ NPAs अगेंस्ट मैनी कंस्ट्रक्शन फर्म्स, जैसे IL&FS क्राइसिस हुआ था कुछ साल पहले। ठीक है, तो दैट इज़ बिल्ड ऑन ट्रांसफ़र। तो EPC मॉडल में क्या था, गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा सरदर्द आ जा रहा था। ठीक है, और बिल्ड ऑन ट्रांसफ़र में प्राइवेट प्लेयर पे एकाएक फाइनेंशियल बर्डन आ जा रहा है, उनको लोन नहीं मिलता है। ठीक है, तो हालांकि NHAI के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स अभी तक जो किए गए हैं वो बिल्ड ऑन ट्रांसफ़र मॉडल पे ही किए गए हैं। अब ये नया आ गया है, अभी फाइनली कम्स द मिक्स ऑफ बोथ ऑफ द अबव, यानी कि EPC प्लस बिल्ड ऑन ट्रांसफ़र को मिला दोगे तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल आ जाता है। अब इसमें गवर्नमेंट पेज 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर फर्स्ट 5 years। द रिमेनिंग 60% कॉस्ट विल बी ब्रॉट बाय प्राइवेट सेक्टर थ्रू देयर ओन पॉकेट्स एंड थ्रू डेट्स पार्टली, एंड द रेवेन्यू कलेक्शन राइट विल बी गवर्नमेंट्स। तो रेवेन्यू कलेक्शन राइट विल बी गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब ये जैसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में प्राइवेट प्लेयर को मिलेगा क्या फिर इसमें, जब 40% गवर्नमेंट ले आ रहा है पैसा पहले 5 साल तक, तो गवर्नमेंट पेज 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर फर्स्ट 5 years। ठीक है, तो पहले साल के अंत में थोड़ा बहुत देगा, फिर गवर्नमेंट दूसरे साल के अंत में देगा, फिर तीसरे, इस तरह से 40% ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट गवर्नमेंट पे कर देगा कुछ 5 साल में, और द रिमेनिंग 60% कॉस्ट्स विल बी ब्रॉट बाय प्राइवेट सेक्टर थ्रू देयर ओन पॉकेट्स या फिर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो ले आएंगे, एंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट जो होगा वो गवर्नमेंट का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रेवेन्यू कलेक्शन राइट गवर्नमेंट का हो जाएगा। अब इसमें जो ओनरशिप, इसके बारे में थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ठीक है, ज़रा समझ लेते हैं ठीक से इसको। इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट ऑफरिंग अ प्री डिटर्मिन्ड पेमेंट टू द प्राइवेट डेवलपर एज एन एन्युटी ओवर द कंसेशन पीरियड विच यूजली स्पैन्स 15 to 20 years। और सिंपल टर्म में देखो, द गवर्नमेंट बियर्स 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज एन एन्युटी पेमेंट टू द प्राइवेट डेवलपर ओवर द कंसेशन पीरियड, while the remaining 60% is invested by the developer। This model combines elements of both build on transfer and EPC models। ये तो ठीक है, लेकिन इसमें हाइब्रिड एन्युटी मॉडल मीनिंग मेजर फीचर्स ये देखते हैं। अब इसमें देखो, बॉट और EPC को मिला दिया है। अब EPC और बॉट ये समझा रहा है। ठीक है, फिर HAM में ये है कि दिस पेमेंट इज़ रिलीज्ड इन 10 equal installments based on the completion of target project milestones। ठीक है, the remaining 60% amount has to be arranged by the private developer। The developer finances around 20 to 25% of the total project cost। The remaining amount of money is raised as debt। So ठीक है, अभी भी क्लैरिटी नहीं आ पाई है, बट इतना लिखने के लिए काफ़ी है। ठीक है, so the government selects the concessionaire of the project। This is done through a transparent, open and competitive bid procedure। The life cycle cost is the parameter for bidding। It is the responsibility of the concessionaire to maintain the project till the concession period comes to an end। The concession period includes the construction period and 15 years of fixed operations। The government remains responsible for toll collection। ठीक है, अब रट लो क्या करोगे। तो एक हो गया हमारा सबसे ऊपर हमने पढ़ा EPC मॉडल, जहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आता है। फिर हमने पढ़ा बिल्ड ऑन ट्रांसफ़र मॉडल, जिसमें प्राइवेट प्लेयर पे आ जाता है। फिर भी NHAI जो है के प्रोजेक्ट्स बिल्ड ऑन ट्रांसफ़र पे किए गए हैं,
और इसमें एक अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें प्राइवेट प्लेयर ऑपरेट करता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है और उसके बाद फैसिलिटी इज़ रिटर्न बैक टू द गवर्नमेंट। फिर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में मैंने बताया कि गवर्नमेंट पेज 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर फर्स्ट 5 years and the remaining 60% cost will be brought by the private sector through either debt or from their own pockets and the revenue collection right will be government's। ठीक है। Now एक ये लास्ट में है BOLT, that is build, operate, lease and transfer। Here the private player builds and holds the operational autonomy by giving its operation on lease to government। The government pays the lease charges for the contracted period after which the facility is completely owned by the government। ठीक है। तो इसमें वही है, जैसे प्राइवेट बनाएगा और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी भी प्राइवेट की होगी, लेकिन सिर्फ ऑपरेशन करने के लिए सरकारी एजेंट्स को बैठा देगा। एंड द गवर्नमेंट पेज द लीज चार्जेस फॉर द कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड आफ्टर विच द फैसिलिटी इज़ कम्प्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये इतना प्रैक्टिस में नहीं है तो इसको ना भी याद करें तो चलेगा। मेनली EPC है, BOT है और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है। नाउ कम अंडर एग्जाम्पशन, जैसे ये क्या है, ये मेरे ख्याल से इनकम टैक्स एग्जाम्पशन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, PPF है और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो ये भी आता है। जबकि किसान विकास पत्र और इंदिरा विकास पत्र ये दोनों ये इनकम टैक्स एग्जाम्पशन में नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। NSC, PPF और ULIP केवल यही 3 आते हैं इनकम टैक्स एग्जाम्पशन में। किसान विकास पत्र और इंदिरा विकास पत्र एग्जाम्पशन में नहीं आते हैं। फिर राजा चलैया कमेटी फिर से आ गया यहाँ देखो। प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर डायरेक्ट टैक्सेस एमर्जिंग एज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। हालांकि जो रिकमेंडेशंस सारी थी मैंने बता दी अभी। तो टैक्स रिफॉर्म्स के लिए इन्हीं का एक बड़ा नाम मतलब 1980s में दिया जाता है। तो ऑप्शन में अगर आएगा चलैया कमेटी तो आराम से मार्क कर लोगे। वगुल कमेटी रिकमेंडेशंस 1987, ये कॉल मनी मार्केट को लेके था, कॉल मनी मार्केट। ठीक है। अनदर ये केलकर कमेटी है 2002 की। अब ये केलकर कमेटी दूसरी है जो कि 2015 में PPP के लिए बनाई गई थी, विच ऑल्सो सजेस्टेड अमेंडमेंट इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, इंट्रोडक्शन ऑफ GST, IPAT, IPRC, ये सब केलकर कमेटी के ही तो रिकमेंडेशंस थे। ठीक है। तो सो दिस इज़ 2015 वाला केलकर कमेटी। अभी ये केलकर 2002 वाला ये दूसरी चीज़ है। अब ये रिलेटेड टू द टैक्स रिफॉर्म्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड एडवांस्ड लाइसेंसिंग स्कीम, एबॉलिशन ऑफ टैक्स रिबेट्स अंडर 88 एंड 80L सेक्शंस। तो केलकर कमेटी 2002 वाला देखो ज़रा। अब ये जो है द 2 टास्क फोर्स वर सेट अप इन September 2002 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विजय केलकर, एडवाइज़र टू फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंपनी अफेयर्स। तो अब ये किस चीज़ के लिए था? कंटेन्स वेरियस रिकमेंडेशंस रिलेटिंग टू ड्रॉबैक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड एडवांस्ड लाइसेंसिंग स्कीम। ठीक है। तो इंक्रीजिंग द इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट, रैशनलाइजेशन ऑफ एग्जाम्पशंस, एबॉलिशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस एंड एबॉलिशन ऑफ वेल्थ टैक्स। सो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फिर इस लिहाज से। केलकर टास्क फोर्स कमेटी ये 2002 में, अब देखो इसको पूरा पढ़ ही लो। एक केलकर जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था जिसने इंट्रोडक्शन ऑफ GST के लिए कहा था, IPAT और IPRC जैसी संस्था बनाने के लिए कहा था, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सर्विस डिलीवरी शुड बी फोकस्ड मोर देन फिस्कल सेविंग्स। तो दैट वाज PPP वाला केलकर कमेटी। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। Equal focus to both greenfield as well as brownfield projects, and there should be a national policy for PPP backed by Parliament, and there should be a quick dispute resolution mechanism for PPP। तो ये दो मतलब ये सारी बातें कही गई थी PPP वाला केलकर कमेटी के लिए। Now there is a different one more केलकर कमेटी 2002 की जिन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी थी, इसको पढ़ लो। So the impetus to direct tax reforms in India came with the recommendations of the task force on direct and indirect tax under the chairmanship of Vijay Kelkar in 2002. The main recommendations of this task force related to the direct taxes related to increasing the income tax exemption limit, rationalization of exemptions, abolition of long-term capital gains tax and abolition of wealth tax, etc. तो इन्होंने ये basically direct taxes as well as इनडायरेक्ट टैक्सेस में कुछ रैशनलाइजेशंस करने की बात की थी, और
इनको याद रखो। फिर ये केलकर जो 2002 वाला है दैट इज़ रिलेटेड टू टैक्स रिफॉर्म्स, राइट। तो ठीक है, तो रिलेटेड टू टैक्स रिफॉर्म्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, एडवांस्ड लाइसेंसिंग स्कीम, इंक्रीजिंग ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट and abolition of tax rebates under section 88 ATL, abolition of wealth tax and long term capital gains tax। ये सारे रिकमेंडेशंस केलकर टास्क फोर्स 2002 के थे। फिर फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन केसी नियोगी थे और सेकंड फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन संथनम थे। और अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिनके चेयरमैन NK सिंह हैं 2017 से 2026 तक। और 15th फाइनेंस कमीशन है NK सिंह के अंदर जिन्होंने प्रपोज किया था 41% शेयर फ्रॉम द यूनियन नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू द स्टेट्स, ठीक है, एज वर्टिकल डेवोल्यूशन। इसके बाद मल्होत्रा कमेटी 1993 में ये इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए बनाया गया था। ओंकार गोस्वामी कमेटी ये इंडस्ट्रियल सिकनेस को लेकर बनाई गई थी। रंगराजन कमेटी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर्स को लेकर बनाई गई थी। और जानकी रमन कमेटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेयर मार्केट स्कैम, ठीक है। तारापुर हमने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और ये मीरा सेठ कमेटी हैंडलूम्स और सत्यम कमेटी टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर बनाई गई थी। ऊपर हमने एक वघुल कमेटी पढ़ी थी दैट वाज रिलेटेड टू कॉल मनी मार्केट। एंड यहाँ पे एक जानकी रमन कमेटी है दैट इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ द शेयर मार्केट स्कैम। और एक ओंकार गोस्वामी कमेटी है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सिकनेस, ठीक है। तो ये 3-4 थोड़े यूनिक नेम है। जैसे मीरा सेठ कमेटी तो वो आपका हैंडलूम्स के लिए है और सत्यम कमेटी टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए है। वघुल कमेटी कॉल मनी मार्केट के लिए है। ओंकार गोस्वामी इंडस्ट्रियल सिकनेस के लिए है और जानकी रमन शेयर मार्केट स्कैम के लिए है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज ऑफ वर्टिकल डेवोल्यूशन जो 41% यूनियन शेयर करता है नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस विद द स्टेट्स, तो किस बेसिस पे करता है उसका फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, देख लो। इसमें इनकम डिस्टेंस या फिजिकल कैपेसिटी, इसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है 45%। फिर एरिया ऑफ द स्टेट को दिया गया है 15%, पॉपुलेशन को दिया गया है 15%, ठीक है। और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को दिया गया है 12.5%। तो एरिया, पॉपुलेशन 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5% और इनकम डिस्टेंस 45%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% एंड फिजिकल एंड टैक्सेशन एफर्ट्स को 2.5%, ठीक है। देन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज़ जीडीपी अभी घटते घटते 15% रह गया है 2022-23 के समय। एंड ब्लैक सॉइल इज़ ऑल्सो फाउंड इन स्मॉल पैचेज इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये ध्यान रखना, ब्लैक सॉइल ऐसा मत बोल देना कि बिल्कुल ब्लैक सॉइल ज़ीरो है आंध्रा या साउथ इंडिया में, नहीं, ऐसा नहीं है। तमिलनाडु में भी ब्लैक सॉइल थोड़ी बहुत मिलती है और आंध्रा में भी मिलती है। इट रिटेन्स मॉइस्चर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड हेंस गुड फॉर रेन फेड क्रॉप्स, ठीक है। व्हेन प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज इन अ गिवन फिक्स्ड टाइम एंड लेबर, तो वो लेबर ऑगमेंटिंग हो जाता है। whereas when investment is made which reduces the rate of capital depreciation, it is called as capital augmenting। जैसे स्पिनिंग जेनी की बात करो तो ये लेबर ऑगमेंटिंग हो जाएगा स्पिनिंग जेनी। whereas स्टील प्लो इंस्टेड ऑफ वुडन प्लो का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ डिप्रिसिएशन कम हो जाएगा, सो दैट विल बी कैपिटल ऑगमेंटिंग इन्वेस्टमेंट। जबकि स्पिनिंग जेनी की बात करें तो एक्चुअली वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है पर लेबर की इन अ गिवन फिक्स टाइम, तो दैट विल बी लेबर ऑगमेंटिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर अब यहाँ से केवल ये एक चार्ट देख लेते हैं, बाकी फिर आगे करेंगे कल। अब ये सब छोड़ो, ज़मींदारी जागीरदारी ये सब तो मेडिवल में पढ़ लेंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, मार्जिनल होता है तुम्हारा 1 हेक्टेयर से कम, और स्मॉल होता है 1 से 2 हेक्टेयर्स, और सेमी मीडियम होता है 2 से 4, और मीडियम होता है 4 से 10, और लार्ज होता है 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, मार्जिनल होता है 1 हेक्टेयर से कम, और स्मॉल होता है 1 से 2 हेक्टेयर, फिर सेमी मीडियम होता है, ठीक है। सेमी मीडियम 2 से 4, और फिर 4 से 10 होता है मीडियम, और 10 से ज़्यादा तो लार्ज लैंड होल्डिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, अब ये हम कल से देखते हैं, ठीक है।